students, welcome to Unique Academy. So how are you all? I hope you're doing great, right? So we are back with the vacation and we'll resume back with your social studies. So we started with history last time and we completed almost 3 parts, right? So who have not seen the videos, first go ahead and watch the previous videos. You can track them on the app and then continue further, right? So French में हम यहाँ तक आ गए थे where we came up with a reform, right? Reform के नाम पे we came up with a reform and then we divided the citizens into 2 groups, right? Where women were completely excluded from everything and men were divided into 2 groups, active and passive. And among the active members, few of them were elected and sent to the National Assembly, right? Now we changed the system there, the polity of political arrangement in French from monarchy to constitutional monarch, right? So जिसने नहीं देखा है एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना जाके ताकि यू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. इसके मिनट या तो लास्ट टाइम वी अंडरस्टूड कि जो नया रिफॉर्म आया जो वहाँ पे से कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रेंच का, लाइक वी हैव ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या क्या थी. तो women were completely excluded and they were considered as passive citizens. बाद में there were bracket of tax, like to eligible to be active member there were 3 clauses. First, you should be 25 years above age and only for men. Second, you should pay taxes or wages equal to 3 men, right? Then constitution began the declaration right for men and women citizen, right? और we consider them was natural and inalienable, मतलब कि ये जो rights है वो natural है, वो कोई छीन नहीं सकता आपसे, right? You are born to get this, और नहीं मिलता रहेगा तो like you have to raise your voice against this, right? And the state has the morality to protect this, has the moral responsibility. ठीक है, तो एक बार देख लेना, फिर अभी हम समझेंगे. Now we're going to understand further, continue this further and understand what were the nitty-gritties. Actual constitution में क्या लिखा था, what was the role of Jacobin Club. तो ध्यान से पढ़ते चलना है और ध्यान देना है, right? ठीक है. So now declaration of rights of men. अब देखो हुआ क्या, men are born and remain free and equal in rights. मतलब कि men are born free, मतलब they are not born under some monarch. Monarch is there just to rule or to be specific, to governance के लिए, to form the laws etc. That doesn't mean कि he is subordinate, मतलब इनके they work as a serfs or slaves, right? They are free. So इसलिए ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि ऐसा कोई है नहीं, दे लाइक नो मोनार्क हैज डिवाइन राइट्स, जो कि क्लेम किया था लुइस 14 ने. तो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता. ऑल मैन आर born and remain to be free and equal in rights. The source of all power resides in the nation. मतलब क्या है कि जो पावर है it should not concentrate among the only in the hands of monarch या फिर monarchy. ये सब गलत है. It should be under the nation. और नेशन चलाने के लिए there should be a parliament, right? पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली. और पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली में जो लोग जाके बैठेंगे, who will be there? people इलेक्ट करके भेजेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, राइट? इन द नेम ऑफ व्हाट, MP और MLAs, राइट? और यहाँ पे केस में क्या था, पार्लियामेंट वाज नेशनल असेंबली एंड पीपल ने इलेक्ट किया था, उसमें से कौन थे, एक्टिव मेंबर्स इलेक्टेड समवन हु वाज टू सिट इन द पार्लियामेंट. मतलब कुछ ना कुछ तो पावर डायल्यूट हुआ यहाँ पे. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि द सोर्स ऑफ पावर, ऑल द पावर रिसाइड्स इन द नेशन, नॉट अंडर द मोनार्क, राइट? This was a landmark judgment or landmark reform. The aim of every political association is the preservation of the rights of the men. They should preserve this right, not कि destroy this right. For example, monarch, despotic rule था, right? Understand, right? Despotic rule, turning out to be Hitler. All the basic rights, fundamental rights were taken away, etc. etc. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. सब हर स्टेट, हर गवर्नमेंट, हर एसोसिएशन का there should be only one aim, to preserve this right first, right? बाकी बाद में सब कुछ. Then liberty consists of power to do whatever is not injurious to others, and law has the right to forbid only the actions that are injurious to the society. Means what? Liberty है. हमने क्या समझा, फ्रेंच का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी. लिबर्टी मीन्स यू कैन डू एनीथिंग, बट वो एनीथिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को इंजूरियस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझो कि यू वांट डीजे लगाना है, ठीक है, मतलब कि हाई साउंड लगाना है, पर वो आपके एंजॉयमेंट के लिए, पर उससे कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. द मोमेंट द अदर पर्सन इज गॉट डिस्टर्ब, तो ये उनका लिबर्टी का वायलेशन होगा एंड देन दे कैन बी ए लॉ प्रोसीजर अगेंस्ट यू. तो यहाँ पे उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया कि लिबर्टी शुड बी देयर बट इट शुड हैव सम सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. क्या होना चाहिए उसमें, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए. क्यों? क्योंकि दूसरे का भी तो लिबर्टी नहीं निकलना चाहिए ना. द अदर पर्सन ऑल्सो हैज द लिबर्टी, राइट? तो यहाँ पे क्या था,
Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to the others, and the law has the right to forbid only the actions that are injurious to the society. अगर वो injurious नहीं है तो you can do anything. मतलब कि कोई monarch नहीं बोल सकता आपको कि आप ये काम मत करो, वो मत करो. You have the freedom, you can do anything. But देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्लॉज ये था कि यहाँ पे सब होने के बाद भी women को this right was not given, right? तो ये समझते चलना है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था. लिबर्टी थी but it was gender bias. Women were not given the equal rights, right? ओके, द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जर्नल विल. जर्नल विल मतलब कि ये एक नॉर्मल विल है और ये सबको सबको मिलना ही चाहिए, राइट? पर यहाँ पे वापस क्या है, विमेन वॉज लेफ्ट आउट. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट फ्रेमिंग द लॉज. फ्रेमिंग द लॉज में कैसा है, हम बोलते हैं ना, सी वी अंडरस्टूड डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी का फर्स्ट पिलर इज क्या, सोर्स ऑफ पावर इज दी वी दी पीपल. अब यहाँ पे पीपल के पास राइट है, दे कैन पार्टिसिपेट इन द फ्रेमिंग द लॉज. हाउ, दे विल इलेक्ट समवन हु विल गो इन द सिट इन द नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट, और वो इनके हिसाब में लॉज और पॉलिसीज बनाएंगे. मतलब इनडायरेक्टली वी आर सेंडिंग समवन, राइट? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग द लॉज. ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब जब खुद जाके कर सके, इनडायरेक्टली मतलब वी आर सेंडिंग समवन ऑन आवर बिहाफ. तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होना चाहिए. जब वो लॉ खुद बनाएंगे तो क्या होगा, दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल और वो हारमोनी में होगा. वरना कोई एक आदमी बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल मोनार्क, तो इज मेन एम वुड बी टू कॉन्सेंट्रेट एवरी पावर अंडर हिज हैंड्स, राइट? वो डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे पावर. पर जब लोग खुद पावर बनाएंगे तो वो ऐसा बनाएंगे कि सबका भला हो, सबका हारमोनी हो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल आर इक्वल बिफोर द लॉ. बिफोर इट मतलब कि लॉ के सामने सब बराबर है. कैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, सपोज अंडर सुप्रीम कोर्ट, इफ द प्राइम मिनिस्टर, अगर मोदी जी भी आए कोई केस के अंदर और कोई नॉर्मल सिटीजन भी आए, फॉर एग्जाम्पल स्लम से आए, तो बोथ विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द फ्रंट ऑफ लॉ. लॉ के सामने दोनों बराबर है. क्यों? बिकॉज बोथ आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. हाँ, इंडिविजुअली ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज जस्ट अ सिटीजन, मतलब ये स्लम से, बट लॉ के सामने दोनों बराबर है, राइट? इसलिए तो हम बोलते हैं ना, कानून के आगे देखो, द लेडी हैज दैट व्हाट, हर आइज आर क्लोज्ड बिकॉज शी गेजेस और शी गिव्स जजमेंट ऑन द बेस ऑफ प्रूफ्स एंड वैलिडिटीज, राइट? वो किसी का पर्सनल स्टेटा देख के नहीं देखा जाता. तो यहाँ पे क्या बोलना मतलब था कि इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल. इसका मतलब ये था, इवन इफ यू आर मोदी, इवन इफ यू आर अस्लम, और इवन इफ यू आर अंबानी, और इवन इफ यू आर नॉर्मल सिटीजन, सब बराबर है लॉ के सामने. नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड, डिटेन एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ. जस्ट गिव अ मिनट हियर, एक्सक्यूज मी. तो अनलेस यू डू समथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ, जो कि बुक में लिखा हो या फिर आईपीसी में लिखा हो, इंडियन पिनल कोड या फिर सीआरपीसी में लिखा हो, इसके अगेंस्ट कुछ आपने किया हो, तब भी यू कैन बी अरेस्टेड. अगर ऐसे मन में आया उठा के नहीं लिया जा सकता आपका, राइट? मतलब कि डेस्पोटिक रूल नहीं होगा वहाँ पे रिपब्लिक रूल होगा, पीपल्स रूल होगा, जो कि वेल फॉर्मुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं पे लिखा होगा. एवरीवन मस्ट बी अवेयर. ऐसा नहीं हो कि अचानक ही वहाँ पे नया रूल बन गया और आपको अंदर फेंक दिया, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वेल डॉक्यूमेंट रूल होगा. इन केस यू वायलेट इट, देन यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. उसके पहले आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकते. तो ये सब बोलने का मतलब क्या था, दी वर द बेसिक राइट्स, दिस वर द राइट्स एक्सटेंडेड टू एवरी सिटीजन्स. बट यहाँ पे विमेन वॉज लेफ्ट आउट. ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था. तो आई विल गिव यू अ मिनट, टेक अ टाइम एंड मेक योर नोट्स इन दिस. कंसाइज नोट्स बनाना है, शॉर्ट में लिखना है क्या क्या बताया, ठीक है? सो चलो बी क्विक.
So done, right? We'll continue further now. So make sure you're understanding the flow, right? किसके बाद क्या हो रहा है and what is the reason behind this. तो अभी हमने क्या देखा कि from a absolutist monarch the constitution changed, the polity changed to constitutional monarch, और उसमें उन्होंने कैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट थे, राइट? नेगेटिव पॉइंट क्या था? वुमेन वाज कंप्लीटली लेफ्ट असाइड और वहाँ पे पैसिव मेंबर नाम की चीज आ गई. सेकेंड वाज पॉजिटिव क्या था कि एवरीवन वाज ट्रीटेड इक्वली, राइट? चलो अब सुनेंगे, अभी रेवोल्यूशनरी वॉर्स होंगे. अभी ये वॉर्स के अंदर बहुत सारा रेवोल्यूशन आएगा, बहुत सारा चेंज आएगा. लॉट ऑफ चेंजेस विल हैपन इन द पॉलिटी टू अंडरस्टैंड. अब ऐसा कुछ सिनारियो होगा. अब क्या होगा देखो, दिस इज नन अदर देन लुइस 16. यहाँ पे अज्यूम करना है हमको, क्या है यहाँ पे, ये लुइस 16 है और ये कोई पर्शिया के किंग है, ठीक है? अब देखना है कि ये एक सीक्रेट अलायंस साइन करेंगे. क्या करेंगे? एक सीक्रेट अलायंस साइन करने की कोशिश करेंगे टू रिगेन बैक. अब उसके पहले कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें हुई थी वो समझना है, ठीक है? तो अटेंटिव रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. तो सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस. टेंस क्यों था? अंडरस्टैंड कि वहाँ पे 25 ईयर्स का क्लॉज बन गया था और क्लॉज आने के बाद एक्टिव मेंबर्स नाम की चीज़ आ गई थी. तो यहाँ पे हु आर लेफ्ट असाइड? विमेन. सेकेंड वॉज द पैसिव सिटीजन्स. अब इनको गुस्सा होगा कि वाई आर बी नॉट गिवन द इक्वल ट्रीटमेंट, राइट? इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही तो वाई बी लेफ्ट असाइड. तो इसके वजह से वहाँ पे सिचुएशन टेंस था. अब और क्या हुआ वहाँ पे, अंडरस्टैंड. थोड़ा कलर चेंज करता हूँ. Although Louis XVI had signed that he entered into constitution, मतलब कि he accepted that I will change from monarchy to constitutional monarch, but he was not happy in that. क्यों? अब देखो दो तीन बात समझना है, बैकग्राउंड में हो रहा क्या है. थोड़ा कलर लेते हैं चेंज, ग्रीन, ठीक है? अब देखो, ही इज लुइस, अब हियर इज मोनार्की, राइट? अब ये मोनार्की वजह से क्या होगा, और भी यूरोपियन स्टेट्स में जो और भी स्टेट्स है वहाँ पे भी मोनार्की होगी. अब हमने पढ़ा था कि यहाँ से लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, थर्ड स्टेट के लोग हैं जो आगे आजू बाजू में जा रहे हैं. फिर जैकोबिन क्लब है, ठीक है? जैकोबिन क्लब के नाम की चीज़ है, यूथ से जो ट्रैवल कर रहे हैं. अब जब यहाँ से ये बात यहाँ पे जाएगी तो समझो कि ये फ्रांस के लोग कहीं पे गए, इटली में. इटली नहीं था उस टाइम पे, पिडमोंट सार्डिनिया वगैरह था. पर हमें क्या समझना है यहाँ से, जब ये कोई फ्रांस का सिटीजन इटली में गया, वहाँ पे सार्डिनिया में गया, तो वहाँ पे पूछेगा भाई आपका मोनार्क क्या है? वो बोला कि हमारे पास तो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क है. ही विल से कि नहीं भाई देखो हमने तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अभी वी हैव सम बेसिक राइट्स, और बेसिक राइट्स के अंदर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली. तो ये फायर यहाँ पे स्पार्क होगा. तो क्या हुआ कि जो बाकी के मोनार्क थे यूरोप में, दे वर टेंस. उन्होंने ये कहा कि अगर ये फ्रेंच का लुइस 16 ने अगर ये बेवकूफ़ी कर दी तो कल ये वेव, ये जो फोर्स है रेवोल्यूशन की, वो हमारे पास भी आएगी एंड वी विल नॉट बी लेफ्ट असाइड, और हमारा भी पावर डायलूट होगा. तो इससे बेटर है कि ये लुइस 16 को हम फिर से कन्विंस करते हैं और उसको बोलते हैं तो वापस मोनार्की एस्टैब्लिश कर, वी विल सपोर्ट यू, ठीक है? तो इसकी वजह से ये पर्शिया का राजा गया था वहाँ पे लुइस 16 को कन्विंस करने के लिए. और लुइस 16 व्हाट ही सेड, ही वाज अ वीक एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज नॉट अ डिसीजन मेकर, ठीक है? इस पे से डिपेंडेंट था, तो उसको वहाँ पे डिसीजन लेने नहीं आया, इसने उसको अच्छी अच्छी बातें बताती, तो ही वाज कन्विंस्ड. अब होगा क्या, इसके वजह से he signed a secret alliance, he entered into secret alliance with the king of Persia and Austria, ठीक है? उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के किंग ने उनको सपोर्ट किया, उनको कहा कि घबरा क्यों हो, आई विल सेंड यू द आर्मी, ठीक है? यू विल साइन अ सीक्रेट अलायंस और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क है उससे वापस आपको मैं डिस्पोटिक ओनली मोनार्की में चेंज कर दूंगा, मतलब नेशनल असेंबली नाम की चीज़ें हम खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ही वॉज कन्विंस. अब हुआ क्या, दे एग्रीड दैट कि पर्शिया एंड दे विल सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन दी फ्रांस. मतलब कि जो भी इवेंट हुआ था, मतलब कि जैकोबिन का क्लब का राइज, फिर जो टेनिस कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ था, मतलब कि बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. ही सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देंगे, यू विल बी टर्न टू मोनार्की और आपके पास वापस सब पावर आएगा, यू विल कंसिडर एज डिवाइन. क्यों? वी आर सेंडिंग द आर्मी. तो ही एक्सेप्टेड. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब होने के पहले ही ये न्यूज़ बाहर स्प्रेड हुई तो क्या हुआ, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली इन 1971 में उन्होंने ये बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क. 1972 में दे डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट दी पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. वॉर कैसे? नेशनल असेंबली क्या करता है, बिल पास करेगा, तो उन्होंने बिल पास किया. बिल के अंदर ये बोला कि वी हैव थ्रेट फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, तो बिल पास हो गया एंड दे एक्सेप्टेड. अब वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क है, मतलब कि मेन पावर लाइज विथ हुम, नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली बोला वी हैव द थ्रेट फ्रॉम हुम, किंग ऑफ पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, तो उन्होंने बिल पास कर दिया. तो बिफोर दे कुड अटैक ऑन अस,
हमने उन पर अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? फ्रेंच ने। डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द पर्शियन ऑस्ट्रिया। द फ्रेंच आर्मी सैंग मर्सिलेस द सॉन्ग कंपोज बाय द पोएट रॉगेट। अब वहाँ पे क्या हुआ, ये नेशनलिज्म वाले गाने बनने स्टार्ट हुए। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं ना भारत माता की जय, वैसे वहाँ पे उन्होंने खुद के नए हिम्स और सॉन्ग्स बनाए ताकि लोगों को यूनाइट कर सके। ठीक है, आर्मी भेजी वहाँ पे, किस पे? पर्शिया, एक मिनट, पर्शिया और ऑस्ट्रिया पे अटैक करने के लिए। ठीक है, ताकि वो उनकी नेशनल असेंबली को अबॉलिश ना कर सके, खत्म ना कर सके, तो उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। तो गाने भी नहीं लिखे गए ताकि लोगों को यूनाइट कर सके और आगे बढ़ सके, जोश आ सके। ठीक है, द रेवोल्यूशनरी वॉर्स अगेन ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू पीपल। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेन एवर देयर वुड बी वॉर, जब भी वॉर होगा तो क्या होगा, आपको सप्लाई करना पड़ेगा फूड का, और फिर यू सप्लाई द मनी फॉर व्हाट? वेपन। अब फूड से क्या होगा, फूड का थोड़ा अलग कलर यूज़ करते हैं। फूड का क्या होगा, शॉर्टेज होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा। पैसा दोगे वेपन में तो क्या होगा, वहाँ पे पैसा भी कम होगा, इकोनॉमी कोलैप्स होगी। और वहाँ पे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आएगा। याद आ रहा है? हाइपर इन्फ्लेशन आएगा। और फिर सबसे पहले क्या होगा, डेब्ट्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा और वो सरकार चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे भी यही होगा। तो क्या समझना है बैकग्राउंड में क्या हुआ कि लुईस 16 के पास पर्शिया के किंग आए, उसने उसको कन्विंस किया कि भाई अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में चेंज कर दिया है तो आपकी वजह से हमारे यहाँ पे भी ये रेवोल्यूशन आएगा और हम भी रोक नहीं पाएंगे। तो बेटर आई सपोर्ट यू साइन अ सीक्रेट अलायंस, आई सेंड द आर्मी एंड वी विल डिस्ट्रॉय द नेशनल असेंबली विच यू हैव एंड यू बी टर्न बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, यू विल बैक टू बी मोनार्की। तो ये एक्सेप्टेड, बट ये बात फैल गई। उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया बाय पासिंग अ बिल स्टेटिंग दैट दे आर द बिगेस्ट थ्रेट। उसके से उन्होंने अटैक कर दिया, उन्हें गाने लिखे, सॉन्ग लिखे, यूनाइट किया और उस पर अटैक करना स्टार्ट किया। जब भी वॉर होगा वहाँ पे लॉसेस होगा इकोनॉमिकल, और ये क्योंकि वॉर के अंदर पैसा लगेगा, फूड लगेगा, वेपन लगेगा, और इसके से डेब्ट बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब भी इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसे की कमी आएगी, हाइपर इन्फ्लेशन आएगा और इनडायरेक्टली इकोनॉमी विल कोलैप्स। व्हाट विल कोलैप्स? तो इकोनॉमी विल कोलैप्स, मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो आई गिव यू मिनट। तो ये बताना है आपको कि नेक्स्ट टाइम वापस रिवोल्यूशन कैसे आ रहा है, व्हाट वाज द रीजन। तो ये पहला रिवोल्यूशन है, तो राइट दिस। आई गिव यू 2 minutes, राइट, टेक योर टाइम एंड राइट, मेक श्योर यूर राइटिंग दिस। ओके, यू मस्ट हैव रिटन, राइट। चलो, तो विल कंटिन्यू फर्दर। तो फ्लो समझ चलना है, राइट, रटना मत इसको। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड, पॉज करना है वीडियो को और फिर से रिवाइंड करके देखना है
फिर भी डाउट लगे तो लेट मी नो, राइट। चलो, अब अब ये क्या होगा, नए रेवोल्यूशन की वजह से नए आइडियाज आना स्टार्ट होंगे। वो आइडियाज क्या थी, समझना है। वाइल मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, क्यों, अब वहां पे वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके साथ, पर्शिया के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। क्यों, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे मतलब कि जो फ्रेंच के अंदर नेशनल असेंबली थी उसको अबॉलिश करने आते थे, क्योंकि दे डिडंट वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को राइट्स मिलना स्टार्ट करेंगे और हम उसको बाद में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसको ही खत्म करो, इसलिए यहाँ पे अटैक करेंगे। तो ये करने से पहले नेशनल असेंबली ने उन पर अटैक कर दिया, तो मेन वर सेंट, दे वेंट इनटू अटैक देयर, तो दे वर फाइटिंग। सो वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग टू लिव एंड मेकिंग लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज। मतलब फैमिली के पीछे ये विमेन दिख रही है आपको, women was fighting, they were looking for the children, family, food, they started earning। अब इतने सब होने के बाद भी women को राइट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये मेन फोकस है कि अभी women का राइज होगा, ठीक है, तो हमें समझना है। तो जब वो वॉर पे चले गए थे तो पीछे कौन रहे थे, women। तो women took care of everyone, earning, family, राइट। अब समझते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमी की हालत एकदम खराब हो गई है, राइट। देखो, द लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड आउट फर्दर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको नहीं रुके, क्योंकि अगर आदमी छोड़ देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट विल कोलैप्स, और वंस कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स अगेन ऑल द पावर विल कम अंडर हुम, मोनार्क। और मोनार्क फिर वापस ये जो मोनार्की में चले जाएंगे तो उसके बाद वापस कॉन्स्टिट्यूशन लाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, राइट। तो वेव को नहीं रोकना चाहिए, वी हैव टू कंटिन्यू फर्दर। एज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो क्या हुआ, दो बातें हुई यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि अब ये रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि इसमें दो बातें आई। एक तो ये बात आई कि 25 ईयर्स एंड अबव का जो क्लॉज था उसके अंदर एक्टिव मेंबर्स आए थे, तो कहा ये क्लॉज खत्म होना चाहिए, टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके बेस पे यू विल गेट समवन। और सेकंड, ये एज का पैरामीटर भी कम करो। तो ये नया वेव आया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि और रेवोल्यूशन की जरूरत है अभी, ठीक है, ताकि कंप्लीट रिफॉर्म ला सके, क्योंकि दिस वॉज इनकम्प्लीट। सबसे मेजर था कि विमेन को कंसिडर नहीं किया था, ये तो बाद में आएगा। पॉलिटिकल क्लब्स जैसे कि जैकोबिन क्लब came into became an important rallying point for the people who wish to discuss government policies। क्यों, ये सेम समझो कि जो 21 ईयर्स ओल्ड थे, यूथ थे, वो सब साथ में आने बैठना स्टार्ट कर दिए एक जगह पे और डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमको राइट क्यों नहीं मिल रहा, व्हाट इज द रीजन। तो दे स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग, उससे उनको एक कंक्लूजन पे आए कि नहीं, एज और टैक्स कांट बी अ क्राइटेरिया, राइट। सो दे हैव टू वर्क हार्ड, मतलब कि दिस कांट बी अ क्राइटेरिया, तो देयर शुड बी सम अदर लॉस। तो उन्होंने यहाँ वहाँ का एग्जाम्पल दिए, तो देवर कन्विंस कि ये एज को कम करना चाहिए हमने, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए, देवर स्टार्टेड डिस्कसिंग, जैसे आज होता है ना, जैसे कैंपेनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उसका कैंपेनिंग होगा कि वो क्या मांग रहे क्या नहीं मांग रहे, राइट, हमारे मांगे पूरी करो। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, आईएनसी, फिर आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सबका अपना अपना एजेंडा होता है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज वर सेटअप, पॉलिटिकल क्लब्स वर सेटअप। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वॉज द जैकोबिन क्लब अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर। ये जैकोबिन क्लब सेटअप हुआ। अब ये इसका लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, याद रखना है, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, ही विल बी अगेन दी हेड, लेकिन ही विल बी नेक्स्ट head of the government, understand, which got his name from the former convent of Saint Jacob in Paris। तो देखो हुआ क्या, पहले तो पर्शिया के किंग के साथ ट्रीटी साइन कर ली सीक्रेट, उसका नेशनल असेंबली ने अटैक कर दिया तो कंटिन्यू हुआ वॉर कंटिन्यू हुआ, तो मेन वेंट देयर टू फाइट द वॉर, women took important role, they started earning, they started looking ahead with the family, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, राइट। तो भी उनको राइट नहीं मिला। उसके बाद दे कंसीडर कि रेवोल्यूशन आगे बढ़ना चाहिए। क्यों, ये 25 ईयर्स का एज का क्लॉज प्लस एक्टिव मेंबर्स ये सब खत्म होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उसके लिए क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब सेट होना स्टार्ट हुआ ताकि सब लोग साथ में आ सके और ब्रेनस्टॉर्म कर सके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, जैकोबिन क्लब का। उनके हेड कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, ठीक है। तो एक मिनट देता हूँ, टेक योर टाइम एंड राइट दिस, बी क्विक।
चलो, यू मस्ट हैव रिटन राइट. अब विल कंटिन्यू फर्दर. तो अभी हमने समझा कि विमेन का रोल क्या था. सेकेंड, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द यूथ्स, और फिर पॉलिटिकल क्लब्स का रोल क्या था, एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय जैकोबिन क्लब, हु वाज हिज लीडर, राइट. चलो, अब समझेंगे. जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अभी वो रिपब्लिक में चेंज करेंगे. देखो, उससे पहले कुछ बताता हूँ, आराम से ध्यान देकर समझना. जस्ट ए मिनट हियर, एक मिनट. हाँ, एक मिनट. हाँ, ये देखो, जो ये बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, तो यू अंडरस्टैंड द फ्लो कि क्या कैसे हो रहा है. देखो, सबसे पहले वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था मोनार्की. वहाँ पे मोनार्की थी जिसके पास क्या थी, डिवाइन राइट्स थे, जो कि लुई 16 के दादा परदादा ने सेटअप किया था. मतलब कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता. अब वहाँ पे वेव आया, दे चेंज इनटू व्हाट, 1791 में दे चेंज इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो मतलब वहाँ पे क्या था, नेशनल, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वहाँ पे आई नेशनल असेंबली, जिन्होंने दिया बेसिक राइट्स किसको, सिटीजन्स को. ठीक है. अब यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ पे दिक्कत ये थी कि इसके अंदर दो इसमें डिवाइड किया उन्होंने, एक्टिव मेंबर्स और पैसिव मेंबर्स. ठीक है, पी है. और यहाँ पे विमेन को राइट ही नहीं दिए. अब इसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वापस एक वेव आई. कब, जब यहाँ से 1792 में पर्शिया पे अटैक कर दिया उन्होंने सीक्रेट अलायंस के नाम पे. तो ये वॉर फिर से कंटिन्यू हुआ. वॉर कंटिन्यू हुआ तो विमेन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल. अब यहाँ पे होगा क्या, इस वॉर की वजह से वहाँ पे थोड़ा अच्छा कर लेते हैं. वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रोल स्टार्टअप हुआ किसका, पॉलिटिकल क्लब्स का, जिन्होंने डिमांड किया कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, राइट. वोटिंग एज का क्लॉज था, ये सब हटाना चाहिए, राइट. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जैकोबिन क्लब का. वो हेडेड बाय हुम, मैक्समिलियन. देखो, इतना ही लिख पा रहा हूँ मैं. अब क्या होगा, जब इतना सब बात होगा, इनमें ब्रेनस्टॉर्म होगा तो इनमें गुस्सा आएगा. अब ये लोग रिटेलिएट करेंगे, मीन्स दे विल अटैक. अटैक हुम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था इस पर अटैक करेंगे, बोलेंगे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क नहीं है, और दिस विल बी चेंज इनटू व्हाट, रिपब्लिक. अब रिपब्लिक क्या होता है आराम से बताता हूँ, एक मिनट देता हूँ, पहले इसको लिख लो, राइट. ये फ्लो लिख लो क्या कैसे हो रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक है, तो लिखो इसको, आई विल गिव यू अ मिनट. चलो, बी क्विक. टेक योर टाइम एंड राइट. चलो, तो विल कंटिन्यू फर्दर. तो अंडरस्टैंड कि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में जा रहे. कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में आने का दिक्कत क्या थी, व्हाई द रिवॉल्यूशन विल फर्दर एक्सपांड, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव पैसिव मेंबर नाम का कॉन्सेप्ट था और सबके पास इक्वल राइट के वोट्स नहीं थे, इक्वल राइट्स नहीं था. ठीक है. अब दे विल डिमांड फॉर रिपब्लिक. अभी रिपब्लिक क्या होता है सब बताता हूँ, ध्यान देना. देखो, हुआ क्या, जैकोबिन क्लब के अंदर यूथ्स आए, यूथ ने ब्रेन स्टॉर्म करना स्टार्ट किया और उनको ये पैसिव सिटीजन के नाम पे दिक्कत था. अब दे विल चेंज, दे विल रिवोल्ट और दे विल डिमांड रिपब्लिक. अभी रिपब्लिक क्या होता है ध्यान देना. रिपब्लिक मीन्स जो उनका हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वी हैव प्रेसिडेंट जिनको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. कैसे, वी इलेक्ट एमपीज एंड एमएलएस, वो हमारे बिहाफ पे वोट करते हैं, वी इलेक्ट द प्रेसिडेंट, राइट. ये कोई डायनेस्टी रूल से नहीं आते, राइट. कोई भी बन सकता है. बेसिक क्राइटेरिया क्या, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब क्या होगा, रिपब्लिक मतलब अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था, मतलब देयर वाज नेशनल असेंबली प्लस देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन,
राइट, कॉन्स्टिट्यूशन था प्लस वहाँ पे मोनार्क था, मोनार्क बिलोंग टू डायनेस्टी फैमिली, हमने बोला डायनेस्टी फैमिली खत्म, अब जो हेड रहेगा वो प्रेसिडेंट, जो भी हमारा हेड होगा इट हैज़ टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, तो इसको बोलते हैं रिपब्लिक, मतलब पीपल ने इलेक्ट किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव, राइट, पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो वापिस एक मिनट देता हूँ, टेक योर टाइम एंड राइट दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो, यू मस्ट हैव रिटन। तो आई अज्यूम कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब क्या होता है, मोनार्क मतलब क्या होता है और रिपब्लिक मतलब क्या होता है क्लियर हुआ होगा, राइट। नहीं हुआ तो पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर भी डाउट होता है तो डू लेट मी नो, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे ये वॉर कैसे हुआ, रिपब्लिक के लिए जो वॉर चला वो कैसे हुआ, तो क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये भाई साहब बहुत दुखी होंगे, ये भाई साहब इनका पावर सब छीन ले जाएगा। Republic means what? People elected representative. So on 10th August 1792, the Jacobean storm on the palace of the Italy. अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जेकोबियन क्लब ने ये पैलेस पे अटैक कर दिया। कौन सा पैलेस पे अटैक किया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पैलेस पे अटैक कर दिया। फैक्चुअल क्वेश्चन इतना कोई पूछेगा नहीं, एमसीक्यू में पूछ ले तो देख लेना भाई। सी मैसेकर्स द किंग्स गार्ड, मतलब कि वहाँ पे मारा मारी पे आ गए वो, राइट। इनकलाब जिंदाबाद, अभी वो तोड़फोड़ पे आ गए रेवोल्यूशन के नाम पे, राइट। अब तो उन्होंने क्या किया, पहले तो गार्ड को मार दिया, ठीक है, एंड ही वो हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज, उनको पकड़ के कैद कर लिया उनको, एंड लेटर इम्प्रिजन बाय द असेंबली। असेंबली ने बिल पास किया, बिल में ये पास हुआ कि यस ही इज फॉल्टी, ही इज गिल्टी, तो उनको जेल में डालो, उनके ऊपर केस चलाओ। अब देखो हुआ क्या आगे, इन दी फॉलोइंग इलेक्शंस ऑल द मेन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज, वापस यही क्लॉज है रिपब्लिक के नाम पे, क्या हुआ, ओनली द मेन वर इलेक्टेड, वापस वुमेन वर लेफ्ट आउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब हर मैन को अबाउट 21 ईयर्स एंड अबाउट रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। पहले क्या था, देयर वाज अ क्लॉज कि 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, लेकिन टैक्स ही हैज टू पे टैक्सेस, देन ओनली ही विल बी कंसीडर्ड एज एक्टिव मेंबर, तो ये खत्म कर दिया। अब ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज आर हैव द राइट टू बी वोट, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर सफरेज, ठीक है। बट यहाँ पे वापस क्या है, विमेन वर लेफ्ट बिहाइंड, विमेन वर नॉट कंसीडर्ड। अब जैकोबिन क्लब अंडर द मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर वोन द इलेक्शंस, ही वोन द इलेक्शंस क्यों, इनके वजह से इतना बड़ा रिफॉर्म आया, राइट, तो ही वोन द इलेक्शंस। अब ऑन 21 सितंबर 1792 असेंबली अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक अंडर मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, रीनेम द असेंबली एज द कन्वेंशन। मतलब क्या हुआ, अभी ही फॉर्म द गवर्नमेंट, तो जाके कहाँ पे बैठे, नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली में बिल पास किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क नाम की चीज़ सब फालतू है, नाउ वी वांट टू बी रिपब्लिक, तो इन्होंने बिल पास कर दिया, इनका पीपल का सपोर्ट है, राइट, तो दे बिकेम रिपब्लिक। अब हुआ क्या, इनको ऑलरेडी कैद किया था, अब असेंबली एक बिल पास करेगी और इनको गिल्टी पाएगी। ऑन 21 जनवरी 1793 लुई 16 वॉज गुलिटीन पब्लिकली एट द प्लेस डी लैंकाउंडोर ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेसरी, ट्रेसरी मतलब बिट्रियल, राइट, बिट्रियल के नाम पे इनको क्या कर दिया गया, गुलिटीन कर दिया गया, एंड सेम विद हिज वाइफ। सो व्हाट हैपेंड कि रिफॉर्म कैसे आया, रिफॉर्म पहले आया कि जब उन्होंने अटैक किया पर्शिया के ऊपर, तो वहाँ पे वापस जब वॉर स्टार्ट हुआ, उसमें जैकोबिन क्लब का रोल था। जैकोबिन क्लब सारे डिमांडिंग की वाई ओनली 25 ईयर्स का क्लॉज है, ये 25 ईयर्स का क्लॉज है, ये क्यों है, इसको खत्म करो। इसके से उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, रिवोल्यूशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि उन्होंने अटैक किया पैलेस पे और इनके गार्ड को मार दिया, इनको होस्टेज कर दिया और फिर बिल पास कर दिया, इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट किया तो बाद में उन्होंने बिल पास किया कहाँ पे, नेशनल असेंबली में, और उन्होंने खुद को बताया कि वी आर रिपब्लिक नाउ, हमें कोई मोनार्क नहीं चाहिए। उसके बाद वापस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज फाउंड व्हाट चार्जेस ऑफ, किसके ऊपर, लुई 16 के ऊपर ये चार्ज लगा कि उन्होंने ट्रिचरी की है, उन्हें गिल्टी पाया गया ऑफ बिट्रियल, कि उन्होंने जो गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का जो पैसा था उसको मिसयूज किया गया है, ठीक है, बिट्रियल किया गया और उनको गुलिटिन कर दिया गया। सेम हैपेंड विद हिज वाइफ एज वेल। तो ये हुआ था किसके वजह से, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर की वजह से अंडर द लीडरशिप, और बाद में ही वन द इलेक्शंस एज वेल। तो अभी कंप्लीट पावर उनके हाथ में। अब क्या होगा, फ्रॉम दिस ही विल टर्न आउट टू बी हिटलर,
ठीक है, वो बहुत सारा चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए 2 मिनट देता हूँ, राइट दिस कि रिपब्लिक कैसे बने, व्हाट वाज द रोल। चलो बी क्विक। चलो डन, अब बढ़ते हैं आगे। तो रोल ऑफ जैकबिन क्लब, फिर रिफॉर्म्स क्या क्या लाए उन्होंने, एंड ही वाज हेडिंग मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर, इतना क्लियर हुआ राइट। और अभी हमने ग्लूटिन कर दिया किसका, लुइस 16 का। तो बर्बन डायनेस्टी का यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, 10th में उनको फिर से लाएंगे। अब रिफॉर्म्स क्या क्या आए थे ये मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर के अंदर, तो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, बट उसके बाद कुछ कुछ थे, ही टर्न आउट टू बी डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, बाद में इनका भी गुलेटिन होगा, ठीक है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले, तो ध्यान देना। सो रॉबिन्सपियर गवर्नमेंट इशूड लॉज फॉर प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड रेशन द मीट, मतलब कि मैक्सिमम सीलिंग आ गया वेजेस पे, कि मतलब इससे ज़्यादा पैसा किसको देना नहीं है, या फिर इतना मिनिमम पैसा तो देना ही है कोई भी अगर वहाँ पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वहाँ पे सर्वडम था, फ्यूडलिज्म था, तो दे पेड, नो दे वर नॉट पेड, राइट। तो इन पे उन्होंने मिनिमम वेजेस लाया और मैक्सिमम सीलिंग भी लाया, मतलब मिनिमम तो इतना मिलना चाहिए, मैक्सिमम इतना मिलना चाहिए, ठीक है। बाद में रेशन द मीट, मतलब कि बेसिकली जो पीडीएस होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके अंदर सबको मिनिमम फूड प्रोवाइड कर दिया गया, ताकि क्या हो, सबसे बड़ा इशू क्या था वहाँ पे, फूड क्राइसिस थे वहाँ पे, याद आ रहा है, फूड क्राइसिस थे, उसके से इन्फ्लेशन आया। तो अभी हमने दोनों कंट्रोल करने की कोशिश की। इन्फ्लेशन कैसे, इन द नेम ऑफ वेजेस, अब लोगों के पास पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डाउन होगा, राइट। सेकेंड, फूड कंट्रोल में आएगा। फूड कैसे किया, हर एक को हमने फ्री में फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। फूड प्रोवाइड स्टार्ट किया मतलब कि जो फूड का शॉर्टेज था वो खत्म होगा, राइट, सबके पास इनफ फूड होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या थी वहाँ पे, प्लीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू दी सिटीज एंड सेल एट द फिक्स प्राइजेस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टार्टेड डिसाइडिंग द प्राइजेस, क्यों, ताकि उसको हर कोई अफोर्ड कर सके, क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, उसको खरीद सके। और अब प्राइजेस डिसाइड करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा, वहाँ पे याद आ रहा है इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल, जब क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, पर यहाँ पे हमने प्राइस ही कंट्रोल कर दिया कि इसके ऊपर बेसिक लिमिट है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा इनडायरेक्टली, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पॉज करना, मैंने स्टार्टिंग में बताया, आराम से आके देखना, राइट। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ही प्लीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल एट द प्राइजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टार्टेड फिक्सिंग द प्राइजेस, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, उससे महंगा नहीं बेच सकते, उससे सस्ता बेच दो भले, उससे महंगा नहीं बेच सकते, क्यों, ये कोई लिमिट है कि ये कोई असेंशियल कमोडिटीज होगी। जैसे कि अभी देखो कोविड-19 के अंदर मास्क कितने भी रेट में बिक रहे थे, फिर बाद में गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंड सेड कि इतना, समझो कि 200 रुपीज़ के ऊपर आप कोई मास्क नहीं बेच सकते, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए ही इन द सेम वे ही ऑल्सो ट्राई टू रेगुलेट, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सके, राइट। अभी एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज बैंड एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द ब्रेड मेड ऑफ द होल व्हीट। ये क्या था, ये एलिट लोग
वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट लोग थे वो उसको खाते थे, तो इससे क्या था, डिफरेंस आता था, लोगों में डिफरेंस था। अब सेम खाना सेम, देखो फॉर एग्जाम्पल इस सबको भूल जाओ, अभी वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज हिंदी, तो वी कैन रिलेट ईच अदर, राइट। हिंदी में बात करते तो सब बराबर लगते हैं। अब कोई भाई साहब आ जाए, समझो संस्कृत, अभी पहले क्या था, संस्कृत सिर्फ एलिट लोग पढ़ पाते थे, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन नहीं पढ़ पाते थे, या फिर जो लोअर क्लास सोसाइटी थे दे वर नॉट इन दैट ग्रेड स्टेटा कि वो संस्कृत पढ़ सके, तो वहाँ पे था प्राकृत लैंग्वेज, तो यू कैन एसोसिएट, ठीक है। तो देखो अगर हिंदी रहेगा तो वी एवरी वन कंसिडर कॉमन, तो अंबानी भाई साहब भी हिंदी बोल सकते हैं, इस्लाम लोग की भी हिंदी बोल सकते हैं, तो वी हैव सम कॉमनैलिटी, तो हम एक दूसरे को एक इसमें हेल्प करेगा, यूनिटी में हेल्प करेगा, सबको साथ लाने में काम करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट मैक्स मिलियन थॉट कि सब लोग क्या खाएंगे, होल व्हीट का ही आटा खाएंगे। ये एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर खाने से क्या होगा, क्लास सिस्टम आएगा इंडिया में, मतलब कि फ्रेंच में क्लास सिस्टम आएगा, अर्बन क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो क्लास खत्म करने की बात करेंगे, ये स्टैंडर्ड ही खत्म कर देंगे, सब लोग एक सेम मीट खाएंगे, तो जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कहीं ना कहीं पे वी विल ट्राई टू कर्ब इट, ठीक है, ये कोशिश थी उनकी। आगे पढ़ेंगे। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस, मतलब कि वहाँ पे इक्वालिटी हुई, मतलब कि भाषण हुए, पॉलिटिकल एड्रेस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सर एंड मैडम, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था, ट्रेडिशनल सर एंड मैडम लगाना पड़ता किसके, एलिट फैमिली के आगे, राइट, हिज हाइनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सबको अबोलिश कर दिया, ऑल ओवर कंसिडर एज ला पार्टे। सीओतो मतलब सब लोग सिटीजन्स हैं किसके, ऑल आर सिटीजन ऑफ द फ्रेंच, कोई सर नहीं कोई मैडम नहीं है, ऑल आर इक्वल, वहाँ पे ऑल आर इक्वल, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट, तो ये सब अबॉलिश कर दिया। चर्चेस वर शट डाउन, जो चर्चेस थे वो सब बंद कर दिया, उनको दे वर टर्न इनटू कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस, वहाँ पे आर्मी का सामान रखते थे या फिर ऑफिस बना दिया गया था। चर्च सिस्टम खत्म कर दिया, बोले ऑल आर इक्वल, कोई किसके पास डिवाइन राइट्स नहीं होंगे, राइट। तो क्या क्या समझा हमने, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के रिफॉर्म क्या कहते, ही सेट द मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एज वेल एज व्हाट, फूड मीट वॉज प्रोवाइडेड, रेशन, मतलब कि उसको रेशन किया, मतलब उसको एक उस पर भी लिमिट रखा, राइट, एवरीवन वॉज गॉट इट, जैसे पीडीएस है इंडिया में, रेशन कार्ड दो तो मिल जाएगा, तो वहाँ पे उसको रेशन करने की कोशिश की, उसको लॉजिकली उसको सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो अफोर्ड हो पाए, ठीक है। बाद में प्लीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर वॉज बैंड, एवरीवन वॉज आस्क्ड टू ईट व्हाट, होल व्हीट, और नहीं करते रहेंगे तो फिर देखो अगेन डेमोक्रेसी का वायलेशन, यहाँ पे यू शुड हैव योर फ्रीडम, बट यहाँ पे इन्होंने कोशिश की ताकि इक्वालिटी ला सके। बाद में इक्वालिटी वॉज सेट टू प्रीच थ्रू दिस स्पीचेस एक्सेट्रा। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सर एंड मैडम वर अबॉलिश, ऑल वर कंसिडर एज द सिटीजन्स, चर्चेस वर अबॉलिश्ड और शट डाउन, और वो दे वर कन्वर्टेड इनटू ऑफिस एंड बराक्स, ठीक है। तो आराम से इसको 2 मिनट देता हूँ, आराम से लिखिए एंड मेक ए नोट्स, कुछ डाउट होता है डू लेट मी नो, और मेक श्योर यू वॉचिंग दिस वीडियोज, राइट। आराम से देखिए, थोड़ा लंबा चैप्टर है, आई अंडरस्टैंड, बट इसको आराम से समझाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम चैप्टर विल बी कंटिन्यूइंग इन योर 10th, ठीक है। फर्स्ट ही चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, और वो चैलेंजिंग हो जाएगा वहाँ पे अगर ये बेसिक नहीं समझ पाओगे तो, ठीक है। तो टाइम लेना, आराम से पॉज इट, आराम से लिखो उस वीडियो, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर, राइट। चल टेक केयर, स्टे होम।